Hello students, welcome back. Students, today we are going to start unit 3, which is classification of elements and periodic properties of elements. So we have unit 3 or chapter 3, and it is classification of elements and periodicity or periodic properties. We say periodic properties of elements. Okay, so students, सबसे पहले what do you mean by classification of elements? Classification का क्या मतलब है? So classification of elements means arrangement of elements according to their properties in such a way that all the elements with similar properties they are grouped together. That means वो सभी एक ही vertical column में होंगे, and all those elements with different properties they are separated. So classification means arrangement of elements in such a way that elements with similar properties are grouped together, while those which are different they are separated. And students, when we arrange elements according to their properties in tabular form, that means when we arrange elements according to their properties in horizontal rows as well as vertical columns, the tabular form that we get is called periodic table. So जब भी आप elements को arrange करोगे along horizontal rows and vertical columns, जो भी tabular form होगा जिसमें आप elements को classify करोगे या arrange करोगे according to their properties, that tabular form is called periodic table. Now students, आज जो हम periodic table पढ़ते हैं, which is called modern periodic table or long form of the periodic table, or since modern periodic table is based on electronic configuration, हम इसको Bohr's model, Bohr's periodic table भी बोलते हैं. Now students, but मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले के हमें सभी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स को भी पढ़ना होगा. मींस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले भी तो साइंटिस्ट ने या केमिस्ट्स ने जितने एलिमेंट्स उस टाइम पे डिस्कवर हुए थे उनको अरेंज किया था. सो उसके लिए स्टूडेंट्स अब हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज historical development of periodic table. Now students, so सबसे पहला जो अरेंजमेंट एलिमेंट्स का दिया गया था, इट वॉज गिवन बाय अ जर्मन केमिस्ट डॉबरआयनर. सो जो पहला हमारा क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का इन पीरियोडिक टेबल वो है डॉबरआयनर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स. अब ये डॉबरआयनर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स क्या है? सो स्टूडेंट्स ध्यान से सुने. डॉबरआयनर ने क्या किया था, दैट ही अरेंज्ड एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ट्रायड्स. अब उसने सभी जो एलिमेंट्स थे उनको देखा, उसने प्रॉपर्टीज उनकी कंपेयर की, एंड जो भी एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी उसने उन एलिमेंट्स को अरेंज किया इन ट्रायड्स. ट्रायड्स मींस अ सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स. So Dauber-Einer arranged elements with similar properties in triads, and he found that the atomic mass of the middle element in a triad is equal to or approximately equal to the arithmetic mean, means average of atomic masses of other 2 elements. Means उसने जो 3 एलिमेंट्स एक ट्रायड में अरेंज किए थे जिनके प्रॉपर्टीज सेम थे, हर ट्रायड में जो मिडिल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास बाकी 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का
एवरेज जो आएगा अप्रोक्सीमेटली उसके इक्वल होगा. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ही अरेंज्ड एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम इन अ ट्रायड. नाउ द एटॉमिक मास ऑफ से सोडियम मिडल एलिमेंट है, नहीं पता था, लेकिन दैट ऑफ पोटेशियम इज 39 एंड लिथियम इज 7. सो अगर लिथियम का 7 है, पोटेशियम का 39 है, तो इस ट्रायड में जिसमें ये 3 एलिमेंट्स हैं, ये जो मिडिल एलिमेंट है दैट इज सोडियम, इसका एटॉमिक मास कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली एटॉमिक मास ऑफ सोडियम विल बी 7, दैट इज एटॉमिक मास ऑफ लिथियम प्लस 39 divided by 2. So that means average ले लिया. So it is 46 divided by 2 and students it is what? 23. So ये था Dover-Einer's law of triads. एक और एग्जाम्पल आपको बता देता हूं. Now in Dover-Einer law of triads, chlorine, bromine and iodine, these are elements with almost similar properties. इनमें से ब्रोमीन इस ट्रायड का मिडिल एलिमेंट है. सो इसका एटॉमिक मास क्लोरीन और आयोडीन के एटॉमिक मास का एवरेज होगा. नाउ स्टूडेंट्स, क्लोरीन हैज एटॉमिक मास से 35.5, आयोडीन हैज 127. सो व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन? सो एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन जो होगा वो बाकी दो एलिमेंट्स जो ट्रायड में है दैट इज 35.5, उनके एटॉमिक मासेस का एवरेज होगा. एंड स्टूडेंट्स, ये कैलकुलेट करके आया ऑलमोस्ट 81.25, जो कि ब्रोमीन के एक्चुअल एटॉमिक मास दैट मींस 80 के काफी क्लोज था. सो स्टूडेंट्स, ये था डोवर-आयनर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स. बट ये जो अरेंजमेंट था जो डोवर-आयनर ने दिया था स्टूडेंट्स, दिस डिड नॉट वर्क वेल फॉर ऑल द एलिमेंट्स. सो सभी एलिमेंट्स के लिए इस टाइप का जो अरेंजमेंट था वो वैलिड नहीं था, पॉसिबल नहीं था. सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स दिस अरेंजमेंट और दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाज डिसमिस्ड और डिस्कार्डेड. उसके बाद स्टूडेंट्स एक और फ्रेंच केमिस्ट ने एलिमेंट्स जिनके प्रॉपर्टीज सेम थे उनको अरेंज किया इन अ सिलेंड्रिकल टेबल ऑफ एलिमेंट. सो वी कॉल इट, सो सेकेंड टाइप ऑफ अरेंजमेंट और पीरियोडिक टेबल वो था डी चेंकरटॉइस क्लासिफिकेशन. Now students, in de Chenkertois classification, de Chenkertois is a French chemist. So de Chenkertois ने क्या किया था? That he arranged elements with similar properties in order of increasing atomic mass. That means जितने भी elements इनके properties same थे उसने उनको arrange किया in order of increasing atomic mass in a cylindrical table so as to display the reoccurrence of properties. So जो properties में recurrence था उसको display करने के लिए उसने उन elements को arrange किया था in a cylindrical table. And he found that all the elements with similar properties, they fall along the same vertical line from the center of the spiral. Means जितने भी वो एलिमेंट्स थे उसने इस तरह से सिलेंड्रिकल एक टेबल उसने बनाया एंड देन से इस तरह के वर्टिकल लाइंस उसने ड्रॉ किए फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्पाइरल. मींस इस तरह से. एंड ही ऑब्जर्व दैट ऑल द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज दे फॉल अलोंग द सेम वर्टिकल लाइन विच इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पाइरल. ये जो हेलिक्स है उसके सेंटर से. बट स्टूडेंट्स, ये जो डी चेंकरटॉइस का क्लासिफिकेशन था लोगों को इसने बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं किया. सो दैट मीन्स ये जो क्लासिफिकेशन था बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ. सो इसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया. सो डी चेंकरटॉइस क्लासिकल डिड नॉट अट्रैक्ट मच अट्रैक्शन एंड दैट इज व्हाई इट वाज आल्सो डिस्कार्डेड. सो नाउ स्टूडेंट्स, अब उसके बाद 1865 में एक ब्रिटिश केमिस्ट था न्यूलैंड्स.
he also gave, so Newland's law of octaves. Newland's law of octaves. Now, what is this Newland's law of octave? Now, Newland ने क्या किया, that he also arranged elements with similar properties in the order of increasing atomic masses, and he observed that the properties of every eighth element, हर eighth element का जो property था, they resemble with the first one in that arrangement. So properties of every eighth element in the sequence are similar to the properties of first one. So मैं आपको बताता हूं, से lithium, then we have beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen and fluorine. Then we have sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, potassium and calcium. Now see students, अगर ये first element है से lithium, so this is the first element. So when we arrange elements in order of increasing atomic mass, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh and eighth element, again उसका property lithium की तरह होगा. Again if we start from here, ये first हो गया, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh and eighth element फिर से potassium हो गया. So all the in this arrangement, these are the elements with similar properties, and we observe that है क्या, अगर हम notice करें that सोडियम जो आया है वो eighth element है when we arrange elements in increasing order of atomic masses. So properties of every eighth element resemble with that of first one. Similarly potassium resembles with, say अगर ये eighth है तो ये first हुआ. So इस तरह से ही magnesium will resemble beryllium, aluminium resembles boron. And students, इसको law of octaves क्यों कहा गया? Because this classification और ये जो periodic table था, ये जो arrangement है elements का, this is similar to what the musical note, जिसमें 8 आपके वो जो सरगम होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा. So सा फिर से 8th position पे repeat हो गया. So since this has analogy with the musical scale of octaves and where every 8th note is similar to the first one, this was called law of octaves. But students, ये जो classification था, this worked well for lighter elements up to calcium. So पहले आप कह सकते हैं 20 elements के लिए ये classification इसने अच्छे से work किया था, but this classification failed in case of heavier elements. And also students, in this classification से अगर आप ध्यान से देखें, noble gases को main periodic table में नहीं रखा गया था. So अगर noble gases को रखते थे तो ये periodic table fail हो गया था. So students, because of all these limitations, this classification was also dismissed. And then students, उसके बाद एक और classification किया गया elements का, मतलब elements को properties के हिसाब से arrange करने की कोशिश की गई थी in tabular form by Lothar-Meyer. So that arrangement is called Lothar-Meyer's arrangement. Now ये Lothar-Meyer's arrangement क्या है? So next we have Lothar-Meyer arrangement. Now student, Lothar-Meyer's arrangement में क्या था? Now in Lothar-Meyer's arrangement again elements जो था वो arrange किए गए थे in the order of increasing atomic mass. But students, the basic जो आपको Lothar-Meyer classification का principle है वो समझना है. Lothar-Meyer ने क्या किया था? He plotted atomic properties of elements against their atomic mass. Atomic properties may be atomic volume, boiling point, melting point. So उसने कोई भी atomic property लिया था और उसको plot किया था उसने against atomic mass of the element, and he observed that elements with similar properties occupy similar positions in that graph. So मैं आपको बताता हूं, say in Lothar-Meyer's arrangement अगर मैं से किसी भी element का atomic volume, say atomic volume in centimeter cube
से प्लॉट करता हूं विद एटॉमिक मास, देन से अगर ये लिथियम था, से यहां पर स्टार्ट करता हूं मैं, देन यहां बेरिलियम, देन वी हैव बोरोन, देन वी हैव कार्बन, देन वी हैव नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, उसके बाद से वी हैव फ्लोरीन, देन वी हैव से नोबल गैस नियॉन, एंड देन वी हैव सोडियम. सो इसी तरह से फिर आपका ये था एंड से ये, एंड अगर लिथियम यहां था स्टूडेंट्स, तो एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टी फिर से सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा था, दैट मीन सोडियम यहां पर, फिर पोटेशियम, and then say rubidium. So all the elements with similar properties, they were occupying similar position. Similarly, say अगर इधर बोरोन था, then इधर एल्यूमिनियम, इधर से गैलियम था, एंड से स्टूडेंट्स अगर ये नाइट्रोजन था, यहां पर आपका से फॉस्फोरस था, इसी तरह इधर आर्सेनिक था. से अगर ये पोजीशन से आपका ये फ्लोरीन का है, ऐसा ही पोजीशन यहां क्लोरीन, इधर से ब्रोमीन, ये आपका नियॉन है. सो ऑलमोस्ट सिमिलर पोजीशन आर्गन का इधर, एंड यहां पर आपका क्रिप्टॉन का था. सो इस पर्टिकुलर ग्राफ से जो उसने रिजल्ट्स कंक्लूड किया, मींस यहां से उसने ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द रिजल्ट्स फ्रॉम दिस एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास ग्राफ, he arranged elements in order of increasing atomic mass. And students, let me tell you, उसका ये जो क्लासिफिकेशन था, ये इतना सक्सेसफुल था that it resembles the modern periodic table that we study today. But students, उसका ये जो काम है, ये पब्लिश नहीं हो पाया था until Mendeleev periodic table was given. So his work was not published. जब तक कि मैंडलीव्स ने एक और पीरियोडिक टेबल नहीं बना दिया, तब तक उसके काम को पब्लिश ही नहीं हुआ था उसका. सो लोगों तक ये बहुत गया नहीं था. बट लेट मी टेल यू दैट लोथरमियर्स अरेंजमेंट इज सो सक्सेसफुल दैट इट रिजेंबल्स और इट रिजेंबल्ड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दैट वी स्टडी टुडे. सो स्टूडेंट्स, ये था लोथरमियर्स अरेंजमेंट. उसके बाद स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे अब मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. नाउ मैंडलीव एक रशियन केमिस्ट है, पूरा नाम है डिमिट्री मैंडलीव. नाउ मैंडलीव का जो क्लासिफिकेशन था, वो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिक टेबल. सो मैंडलीव ने क्या किया, ही suggested that atomic mass is a fundamental property, and he then proposed that all the chemical and physical properties of elements are periodic functions of their atomic masses. And students, this is called Mendeleev's periodic law. So Mendeleev arranged elements on the basis of Mendeleev's periodic law. So उसने जो elements को arrange किया था, it was on the basis of a very important law which is called Mendeleev's periodic law, and it states that chemical and physical properties of elements are periodic functions of their atomic masses. So that means इस क्लासिफिकेशन में उसका ये इंपॉर्टेंट एक सजेशन था दैट एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल टर्म और फंडामेंटल एक आप कह सकते हैं फंक्शन है जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करता है. So he arranged elements in the order of increasing atomic masses. And students, when he arranged elements in the order of increasing atomic mass, he found that elements with similar properties
they reoccur after certain regular intervals. मतलब जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है, they repeat after regular intervals. This recurrence of similar properties of elements after regular intervals is called periodicity. Is called periodicity. So Mendeleev ने periodicity के बारे में भी बता दिया था. So what is periodicity? The recurrence of similar properties of elements, ठीक है, after certain regular intervals. This is called periodicity. But students, मैं आपको बता दूं, Mendeleev ने periodicity को observe तो किया था, but he could not provide an explanation for periodicity. Means वो cause of periodicity नहीं बता पाया था. Now students, एक बात और that in Mendeleev's periodic table एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. बट बहुत बार ये भी हुआ था Mendeleev's पीरियोडिक टेबल में दैट उसने कुछ एलिमेंट्स को अरेंज करते वक्त उनका जो ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास था उसको इग्नोर किया था. दैट मीन्स इन Mendeleev's पीरियोडिक टेबल मेनी एलिमेंट्स डिड नॉट फिट इन हिज क्लासिफिकेशन व्हेन दे वर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू व्हाट, या इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. बट उसने फिर उनको उस बात को इग्नोर किया, बट ही अरेंज देम अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, थिंकिंग दैट मे बी उनके एटॉमिक मासेस ही गलत हो. सो ही अरेंज्ड एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज ऑल्सो. सो ऐसा भी हुआ था दैट कई बार उसने कुछ एलिमेंट्स को प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अरेंज किया था, ना कि इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास. क्योंकि कई बार क्या होता था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे जब वो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा था वो उधर फिट नहीं आ रहा था, तो उसने सोचा शायद उन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास ही गलत हो, बिकॉज उस टाइम पे हमारे पास बहुत ज्यादा कोई सोफिस्टिकेटेड और सेंसिटिव मेथड्स नहीं थे टू फाइंड एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स. सो स्टूडेंट्स, ये था Mendeleev's पीरियोडिक टेबल. सो इन Mendeleev पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स जो थे उसने उनको अरेंज किया था इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास अलोंग हॉरिजॉन्टल रोज. सो इन Mendeleev's पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स को अरेंज किया था अलोंग हॉरिजॉन्टल रोज, एंड दीज हॉरिजॉन्टल रोज वर कॉल्ड पीरियड्स. एंड लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, ऐसे Mendeleev ने 7 पीरियड्स सजेस्ट किए थे, एंड दे वर नंबर्ड 1 to what 7. सो 1 से 7 तक, दैट मीन्स आप 1 to 7 कह सकते हो. बट स्टूडेंट्स, देन ही ऑल्सो अरेंज्ड एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इन वर्टिकल कॉलम्स. सो इन Mendeleev's periodic table we have elements with similar properties in vertical columns, and these vertical columns were called groups. And in Mendeleev's periodic table all the noble gases, they were kept in a zero group. So एक zero group था. उसके बाद उसने बाकी एलिमेंट्स को अरेंज किया था फ्रॉम ग्रुप्स 1 to 7. एंड स्टूडेंट्स, एक ग्रुप 8 भी था जिसमें उसने 9 एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन 3 ट्राइड्स. दैट मीन्स इन 8th ग्रुप there are 9 elements, but they are in 3 sets. That means 3 triads में अरेंज किया था. फर्दर स्टूडेंट्स, ये रोमन न्यूमेरल्स उसने यूज किए थे ग्रुप्स के लिए, 0, उसके बाद 1 to 7 एंड देन 8. एंड जितने भी ये 1 to 7 वाले ग्रुप्स थे, they were further classified into सब ग्रुप्स. दैट इज 1 है तो 1A और 1B भी था, 2 था तो 2A 2B था, इसी तरह से 7 में 7A एंड 7B भी था. सो these groups were further divided into subgroups, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, etc. So this was the Mendeleev's periodic table. Now students, अब हम डिस्कस करेंगे important contributions of Mendeleev's periodic table. So Mendeleev's periodic table के कुछ important contributions. So we have important contributions, means हम successful points पढ़ने जा रहे हैं of Mendeleev's
periodic table. Now, the first important contribution is systematic study of elements. Systematic study of elements. So, जितने भी पहले के क्लासिफिकेशंस थे वो इतने सिस्टमैटिक नहीं थे जितना मेंडलीव था. एंड इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि अगर आपको किसी भी एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स है उनमें से किसी एक का प्रॉपर्टीज अगर पता है तो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स कैन बी प्रिडिक्टेड. सो दिस वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन. नाउ सेकेंड वी हैव करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस. करेक्शन ऑफ atomic masses. Now, students, in Mendeleev's periodic table, बहुत से elements थे वो actually when they were arranged in order of increasing atomic mass, they did not fit. ऐसे elements को Mendeleev ने फिर उनके properties के हिसाब से ही arrange किया था, thinking that maybe or might be their atomic masses are not correct. So that means he made certain corrections also. ऐसा ही मैं आपको बता दूं, बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 है एंड मास नंबर 9 है. दिस इज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बट एट द टाइम ऑफ मैंडलीव जो बेरिलियम का एटॉमिक मास था उस टाइम पे लोग 13.5 बोलते थे, बट उस हिसाब से इसको मैंडलीव पीरियोडिक टेबल में कहां होना चाहिए था, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में. बट एक्चुअली क्या जो प्रॉपर्टीज वाइज ये रिजेंबल करता था मैग्नीशियम कैल्शियम से. सो इसीलिए इसको उन्होंने या मैंडलीव ने इसके एटॉमिक मास को इग्नोर किया और प्रॉपर्टीज के बेसिस पे रखा, सजेस्टिंग दैट एटॉमिक मास माइट बी रॉन्ग. और ये बाद में उसने करेक्ट भी किया था टू 9. सो ऐसे बहुत से करेक्शंस मैंडलीव पीरियोडिक टेबल में किए गए थे. Now, the next important contribution of Mendeleev's periodic table is prediction of new elements. Prediction of new elements. Now, students, at the time of Mendeleev, only 56 elements were known. That means Mendeleev's periodic table भी सिर्फ 56 elements के लिए ही दिया गया था. But students, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन मैंडलीव का यही था दैट ही लेफ्ट सेवरल गैप्स इन पीरियोडिक टेबल. ये कह के उसने काफी गैप्स रखे थे पीरियोडिक टेबल में, काफी जगह छोड़ दी थी कि शायद बहुत से एलिमेंट्स अभी भी अनडिस्कवर्ड हैं और अननोन है. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, उसने ग्रुप 13 जब हम पढ़ते हैं बोरोन एल्यूमिनियम, ठीक है, उसके बाद उसने गैप छोड़ दिया एंड देन there was indium. And students, ये गैप उसने छोड़ा था उस अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए जो बाद में डिस्कवर हुआ था एंड इट वाज फाउंड टू बी गैलियम. और उसने इस एलिमेंट्स को एका एल्यूमिनियम नाम भी देके छोड़ दिया था, एका एल्यूमिनियम. सिमिलरली कार्बन, सिलिकॉन, टिन, तो उसने यहां पर गैप छोड़ दिया था जो बाद में फिल किया जर्मेनियम ने, और उसने इसको एका जर्मेनियम कहा था. सो स्टूडेंट्स, ऐसे ही बहुत से सक्सेसफुल पॉइंट्स, सॉरी एका सिलिकॉन, दिस वाज एका सिलिकॉन. एका मींस आफ्टर, सो ये आफ्टर सिलिकॉन था, ये आफ्टर एल्यूमिनियम था. सो ऐसे बहुत से उसने और भी सक्सेसफुल पॉइंट्स डिस्कस किए थे. बट स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ उसमें बहुत से ड्रॉबैक्स भी थे विच वी विल डिस्कस in next video lecture. So that is all for today. Thank you students.